US has urged India to cooperate with Canada. State Department of US and India-Canada diplomatic showdown wants India to cooperate with the investigation by Canada. When it comes to the Canadian matter, we've made it very clear that the allegations are serious and they need to be taken seriously. We want to see India cooperate with Canada in its investigation, obviously, which they have not chosen that path. The Canadian matter, we have made clear that the allegations are extremely serious and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. When it comes Milan Sharma getting in more details in that big story joining us this morning. Milan, the statement from US urging India to cooperate with Canada and adding that caveat that it's evident that India has not followed that path, I think speaks volumes of the fact that the world also, in fact, standing divided as far as this huge controversy between India and Canada regarding Khalistanis, support to Khalistanis, political or rather various other assassinations that are being carried out in Canada is concerned. India has made its position clear that we have said what we've had to, but there is proof that is needed from Canada, which hasn't been forthcoming. Yes, Neha, this is the latest statement that has come in from the US State Department spokesperson, Nolesh Mathew-Miller, who says that, as a country, the US, in a first reaction, they're saying that they want India to cooperate with Canada. But here is where it, changes, because India has been cooperating with Canada and India had been asking Canada for evidence to prove India's involvement in the Niger case, which has not been very forthcoming. There were some journalists in this particular press conference who also asked the US whether the inquiry team that was in Washington, what transpired between, the two countries, and that information was also not specifically shared by the USA. So therefore, a lot remains under wraps, and, expect another statement from India on the kind of statements that have come out from the US. Remember that the Five Eyes countries that share intelligence amongst themselves, all of them have perhaps reacted to the developments in Canada at the moment, but that also shows how there is a difference of opinion in what is being touted in the Western media as opposed to where India stands with its diplomats who are being targeted and whose effigies are being burned, and posters of assassinations of them are being put up by, Canada right under the nose of the Canadian administration, that is the Justin Trudeau government. All right. Thanking you for the moment. Milan getting in those details. With the statement really coming in from the US this morning, talking about the fact that India should be cooperating with Canada on Niger killing allegations. It's the US criticizing India for not cooperating. We'll listen in once again. When it comes to the Canadian matter, we have made clear that the allegations are extremely serious and they need to be taken seriously, and we wanted to see the government of India cooperate with Canada in its investigation. Obviously, they have not chosen that path. Staying with this standoff, amid the diplomatic fallout between India and Canada, there is rising concern among students vying to study in Canada, as the escalating tensions could impact visa applications processing as both countries reduce staff at their consulates. This could possibly lead to a cut in the number of visas allowed, which are already lower than in previous years due to a strain in ties. Over 50% of global students in Canada are Indians, which is nearly 4.27 lakh students. Earlier this year, Canada capped the number of international student visas at 3,60,000 for a period of 2 years, cutting it by 35% from 2022. मैं सितंबर नेक्स्ट इनटेक के लिए जाऊंगी 2025 में, और मैं अभी आईएलटीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, और मेरा स्टार्टिंग से टारगेट था कि मुझे कनाडा ही जाना है और मैंने बैचलर्स प्रोग्राम पढ़ना है, और मैंने कॉलेज वगैरह भी सब ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट करा हुआ है। बट अब जैसे मैं ये न्यूज़ सुन रही हूँ तो मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है कि आगे क्या होगा और फ्यूचर का क्या होगा। आप होपफुल हैं कि चीजें ठीक होंगी, क्योंकि बड़ा आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं।
बिल्कुल सर, कनाडा एक ऐसी कंट्री है जिसने मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब बहुत अच्छा इंडिया को सपोर्ट दिया है और बच्चों के लिए मतलब बहुत अच्छा रहा है, मतलब वर्क परमिट पीआर के लिए। तो मैं वैसे यही होप करती हूँ कि आगे हमें बेस्ट रिजल्ट मिले और हमारे रिलेशन खराब ना हो और यहाँ से जितने बच्चे जाना चाहते हैं वो सारे जाएं और उनको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अभी जैसे जो भी हमारे रिलेशंस खराब हुए हैं इंडिया के कनाडा के साथ, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेके और जो भी एक्सपेल कर दिया जैसे कमिश्नर को, राइट, तो उससे जैसे हमारे जो भी अब जैसे हमारा फ्यूचर जो भी अपकमिंग इनटेक था, अब अगर कनाडा गवर्नमेंट वीज़ा देना बंद कर देगी स्टूडेंट्स को तो वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसर्न हो जाएगा। जिनकी एप्लीकेशन स्पेशली इन प्रोसेस है, जैसे हमारी ट्यूशन फीस ऑलरेडी सब गई हुई है वहाँ पे, और काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी इनटेक अपना कंप्लीट कर चुके हैं, दे आर अबाउट टू फ्लाई। तो अगर इनकेस गवर्नमेंट ऐसा करती है वीज़ा पे कुछ भी अगर स्टॉप लगा देती है तो बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट्स ने जीआईसी पे की है और ट्यूशन फीस गई हुई है, ऑलरेडी उनका सारा कुछ प्लान्ड है सब। एज ए स्टूडेंट की मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे, मोस्ट ऑफ पंजाब इज़ देयर, तो उनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के अगर रिलेशंस ख़राब होते हैं तो वहाँ पे उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। मतलब मैं इतना एलैबोरेट नहीं कर सकता इस चीज़ को, पर मेरे को पहली फीलिंग यही आता है कि हाँ वहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा बेटा अभी 2-3 महीने पहले ही कनाडा गया है। देखिए लड़ाई झगड़े में तो कुछ पड़ा नहीं है। देखिए दे हैव अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, कनाडा हैज अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर टू लिव लाइफ, एंड यू नो इंडिया इज केपेबल ऑफ गिविंग लॉट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इंडिया जितना स्टूडेंट जाता है इंडिया से वहां पर, तो पॉलिटिकल टेंशन अगर होगी तो प्रॉब्लम तो आएगी। ऑलवेज एक डर तो रहता है कि आगे क्या होगा। तो इन दोनों कंट्रीज के लीडर्स जो कि स्ट्रांग लीडर्स हैं, एक बहुत पुरानी डेमोक्रेसीज हैं दोनों, बहुत बहुत स्ट्रांग डेमोक्रेसीज हैं, इन दोनों को बैठ के एक मसले का हल निकालना चाहिए। मेरा बेटा 2 महीने हो गए कनाडा गया है बीकॉम ऑनर्स करने के लिए। तो ये जो भी मसला चल रहा है, ये पॉलिटिकल मसला, दैट इज नॉट गुड। ये दोनों कंट्रीज की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा गलत है। कुछ बच्चे जो आगे सोचते हैं अपना, उन्होंने करियर सोचा हुआ है, हम वहां जाके सेट होंगे, पेरेंट्स का पैसा लगा हुआ है, फैमिलीज का पैसा लगा हुआ है, तो ये सारी पॉलिटिकल इश्यूज के कारण ये सब कुछ स्पॉइल हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट वीजा पर्सपेक्टिव से या विजिटर वीजा पर्सपेक्टिव से या ट्रेवल के पर्सपेक्टिव से इनऑर्डिनेट डिलेज होंगे। स्टडी और टूरिस्ट दोनों आप बताना। दोनों में डिले होगा। स्टूडेंट्स में इसलिए डिले होगा, एंड ऑफ द डे जितनी प्रोसेसिंग है, चाहे वो सीपीसी एडमिंटन से हो, चाहे वो सीपीसी अल्बर्टा से हो, वो आती भारत में, लेबलिंग भारत में होती है। सो एम्बेसी को जब आप उनके डिप्लोमेट्स आउट हो जाते हैं, फर्स्ट ऑफिसर्स आउट हो जाते हैं, उनका बेसिकली खाना है वो है एम्बेसी का स्टूडेंट वीजा पे नहीं चलता। हम लोगों को ये समझना आता है, लोगों को अक्सर कई कंसल्टेंट कहेंगे जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको भी तो बच्चे चाहिए। अभी इट्स अ मैटर ऑफ नेशनल प्राइड, हम अपने देश के लिए हैं, वो अपने देश के लिए हैं, इसका इंपैक्ट दिखेगा, लंबा दिखेगा। हाँ, अब ये कहना कि सभी को रिफ्यूज कर दिया जाएगा, उन्होंने कहां कहा है? उन्होंने कब कहा है कि हम आपसे पूरी बायलैटरल टाइज तोड़ रहे हैं, हमारा आपसे? ये एक पॉलिटिकल, ये हम अगर जियो पॉलिटिकल स्फीयर में जाए तो ये चलता है। एवरी कंट्री डज इट पावर पोजीशनिंग। हम एज अ नेशन इंडिया, हम कहते हैं कि हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, तो वो कहता है मैं ही E5 का मेंबर हूं। सो इसका इंपैक्ट आपके प्रोसेसिंग पे आएगा, बट र्यूमर्स फैलाना कि कनाडा सबको डिक्लाइन कर देगा, वो गलत है। जो डिप्लोमेटिक वॉर चल रही है दोनों कंट्रीज के बीच में, और जिस तरह से आपस में तकरीर हो रही है, उससे ऊपर एक बहुत ज़रा एक नेगेटिव और एक हार्मफुल इम्पैक्ट पड़ता है जो वहाँ पे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो वहाँ पे इंडियन डायस्पोरा के लोग काम कर रहे हैं, जिसको आप कह सकते हो कि एक तरह से माइन्यूट रेसिज्म भी देखने को मिलता है। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सारे फील करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इनफ्लो ऑफ स्टूडेंट्स हुआ है, और वो भी क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं। मतलब जैसे आप देखिए, जैसे ब्रैम्पटन का जो हाल है, जो मिसिसागा का हाल है, जो टोरंटो का हाल है, कि लोग ज़्यादा हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, और इतना इन्फ्लो होने के करके जॉब, एक जॉब के पीछे इतने ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं, इन पढ़ाई वगैरह कर नहीं रहे, जो भी आपका वो जैसे हुलिगनिज्म हो रहा है, तो वहाँ के अंदर ना एक रिजेंटमेंट पॉलिसी एक बन जाती है वहाँ के लोगों के अंदर, कि इन्होंने आके हमारी एक तो जॉब्स ली हैं, ऊपर से आके यहाँ पे अपना जैसे यहाँ पे कहीं पे गंद डाल रहे हैं, कहीं पे क्या कर रहे हैं, अपना तरीका कर रहे हैं, तो वो एक रिजेंटमेंट रहती है, एंड उसका इम्पैक्ट स्टूडेंट्स को डेफिनेटली झेलना पड़ता है इन वन वे और द अदर वे, जिसको हम कहते हैं हिडन रेसिज्म फॉलो करना पड़ता है।